Hello everyone, today we will discuss about binary semaphore. So what is semaphore? Semaphore is an integer variable which is used to solve the problem of process synchronization. It is used in critical section in mutual exclusive manner. So binary semaphore have two values only, two integer values, that is 0 or 1. In counting semaphore we can have the value from minus infinity to infinity. But in case of binary only we have 0 or 1. Only two value can be there for binary semaphore, and here is the two process, the code section of two process P1 and P2, where there is a wait entry section which is wait, and there is a exit section which is signal, and here is critical section and here is reminder section. The same as process P2 which have entry section as wait and then critical section, then exit section as signal, and then reminder section. So process P1 and P2 both are the process concurrent process. They are cooperative process. They want to enter into critical section to use some certain resources which is common, or resources which two process needs to share, right? So here the definition of wait and signal for binary semaphore is quite different from the counting semaphore. So let's see the definition of wait and signal in case of binary semaphore, right? Here a wait process or wait operation is written here, wait semaphore S, and now inside this semaphore, as I told you, the value can be 0 or 1. So we initialize the value of S by 0 or 1, and here we check whether that semaphore value S is 1 or 0. So we check with value 1. Here you can see S value is equal to 1 if it is 1. Right? If the semaphore value is 1, then what we'll do? If this condition is true, means S value is 1, then what we'll do? We initialize the value by 0, or we change the value from 1 to 0. Right? If it is 1. If it is not 1, means this condition is false, means S value is 0. If S value is 0, then what we'll do? Block the process and place in suspended list by C. राइट इसका मतलब ये है कि यदि S वैल्यू की वैल्यू या सिमाफोर की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये है कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री नहीं है या कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा. इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यदि S की वैल्यू 0 होती है तो कोई भी प्रोसेस कैन नॉट इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन. राइट, सो हियर इज द वेट. सो वेट प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट इनटू द critical section if this wait signal allows, wait operation or wait process allows. So this wait allows, then only critical section any process can be entered into critical section. So if here S value may be 1, यदि S की वैल्यू 1 होती तो ये जो है आपकी ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता और ये एग्जीक्यूट होकर S की वैल्यू 0 हो जाती और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता. We'll see by example later. Now the signal operation. What signal operation says? Signal operation is wait up, wait operation is down, or it can be also written as P or V. Right? P, V, here down, or it is up. So you can use any. So sorry. Signal operation. What it says? Here you can see it is written over here as if suspended list is empty. If suspended list is empty, मतलब जब हम इस सिग्नल ऑपरेशन को चलाएंगे तो सबसे पहले क्या चेक होता है? सबसे पहले ये चेक होता है कि क्या आपके सस्पेंडेड लिस्ट में या ब्लॉक लिस्ट में कोई प्रोसेस पड़ा है. हाँ, यदि पड़ा है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो वैल्यू ऑफ S बिकम 1. वेदर इट इज 0 और 1. यदि 0 है तो ये 1 हो जाएगा और 1 है तो 1 ही रहेगा. राइट, पर व्हेन दिस सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, जब आपके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई भी प्रोसेस नहीं है, सस्पेंडेड लिस्ट आपका खाली है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, देन ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट और दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू. यदि एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी है तो, यदि सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है तो ये आपका ट्रू हो गया. तो ट्रू होगा तो जो भी आपके समय S की वैल्यू होगी, वो 1 हो जाएगी. यदि 0 है तो 1 है और 1 है तो 1 ही रहेगी. राइट, पर यदि सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है
सॉरी सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो कहां चला जाएगा, ये एल्स में चला जाएगा, राइट। और एल्स में जब चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट, राइट। क्या करेंगे हम, यदि आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब कि आपके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई ना कोई प्रोसेस है, तभी आपका ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम, इसका मतलब ये है कि आपके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को जो सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ा हुआ है, उस प्रोसेस को हम वेकअप करके, जगा के वेकअप करके कि हाँ अब आप क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकते हैं, अब आप रेडी क्यू में जाइए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस, कोई जो भी प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट में होगा उस वक्त, उसको हम जगा के और रेडी क्यू में डाल देंगे। नाउ दैट प्रोसेस विच कम्स इन रेडी क्यू may try to get into the critical section by running the wait process, right? So here is the wait and here is the signal, right? Now this is the structure, the same structure, semaphore and integer value and queue, right? We'll understand the binary semaphore by taking one example, right? Suppose the value of s is initially 1, राइट। इफ इट विल, सपोज इट विल बी 0, यदि ये 0 होता तो क्या होता, यहां पर ये देखिए, जब आप कोई प्रोसेस, सपोज P1 है, ये इस वेट प्रोसेस को रन करेगा, तो जब ये वेट प्रोसेस को रन करेगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये प्रोसेस आपका ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम जो इनिशियलाइज करेंगे इसकी वैल्यू सोच समझ के करेंगे, और चूंकि इनिशियलाइज क्या करना है, 0 और 1 से ही करना है, तो चूंकि 0 हम, जैसे मैंने कहा कि 0 है, इसका मतलब कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, तो इसको हम इनिशियली 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और s की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, राइट। s की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या होगा, अब कोई प्रोसेस, सपोज हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, दिस इज रेडी क्यू, राइट। सो हियर इज रेडी क्यू एंड P1 wants to enter into critical section to use certain resources, right? If you have resources maybe 1 or maybe more than 1, फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एक प्रोसेस है P1 जिसको कि कोई रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, और क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए पहले वो वेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और वेट ऑपरेशन ये है, राइट। अब वेट ऑपरेशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि s वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ पर s वैल्यू इज इक्वल टू 1, यस इट इज राइट, राइट। अब राइट है तो क्या होगा कि s वैल्यू की वैल्यू को वो क्या कर देगा, 1 से वो कर देगा 0 और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स इट इज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। सक्सेसफुल ऑपरेशन का मतलब ये है कि प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तो इसका यही मतलब है कि जब भी आपके एस की वैल्यू 1 होती है और वो वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और वैल्यू एस की 0 से सेट हो जाती है और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है, दैट मीन्स सक्सेसफुल ऑपरेशन। अब यही यदि ये वैल्यू 0 होती और वेट ऑपरेशन हम चलाते और ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स, क्योंकि ये क्या है 0, तो ये फॉल्स हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में ना जाके ब्लॉक लिस्ट में चला गया या सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया, तब हम उसको कहते हैं अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, राइट। सो हियर अनसक्सेसफुल। अब हम फिर से वापस उसी कंडीशन में जाते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 1 है और ये वैल्यू 2 है, तो आपका जो प्रोसेस P1 है वो किस पे चला गया, एक हम यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन का सेक्शन बना लेते हैं, ये क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर आपका P1 चला गया, राइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस, यहां से P1 चला गया क्रिटिकल सेक्शन में, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है P2, राइट। नाउ P2 also wants to run wait operation because he also wants to get the resource for completing the execution, उसको भी रिसोर्स चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, वो ट्राई करेगा वेट ऑपरेशन को चला के अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो जब वेट ऑपरेशन को चलाएगा तो यहाँ पर s की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो चुकी है, तो जब वो 0 से इनिशियलाइज हो चुकी है तो ये कंडीशन तो हो गया फॉल्स, राइट। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन चलेगी, और ये कंडीशन क्या लिखा है, ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। अब यहाँ पर एक हम सस्पेंडेड लिस्ट बना लेते हैं। इस सस्पेंडेड लिस्ट में आपका क्या आ गया, प्रोसेस P2, सस्पेंडेड लिस्ट,
राइट। अब सस्पेंडेड लिस्ट में आपको कौन सा प्रोसेस आ गया, P2 आ गया यहां से, राइट। अगेन देयर इज अनदर प्रोसेस P3 दैट इज ऑल्सो वांट टू एग्जीक्यूट द critical section to complete its execution by taking the resource or the use of resource, right? But here you can see the semaphore value is 0. जब वो इस वेट प्रोसेस को रन करेगा, एक वेट ऑपरेशन को रन करेगा, तो यहाँ पर उसको 0 मिलेगा एस की वैल्यू, जो यहाँ पर क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि एस की वैल्यू 1 ना होके 0 है, तो इसका मतलब ये अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। अब यहाँ पर एल्स में हम चले गए, ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इन सस्पेंडेड लिस्ट, तो हमने P3 को भी कहां डाल दिया, सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दिया, राइट। नाउ ये भी आपका सस्पेंडेड लिस्ट में आ गया। अब P1 अपना क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन कंप्लीट करके, अपना रिसोर्स जो भी अवेलेबल है उसको यूज करके अब वो बाहर आना चाहता है। बाहर आने के लिए वो क्या करेगा, बाहर आ सकता है, पर क्या करेगा, बाहर आने के लिए वो सिग्नल ऑपरेशन को चलाएगा। सिग्नल ऑपरेशन को चलाने के लिए वो इस कोड को, इस पार्ट ऑफ कोड को चलाएगा। इस पार्ट ऑफ कोड में क्या होगा कि आप जब ये प्रोसेस या ये ऑपरेशन चलेगा तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, तो वो चेक करेगा ये सस्पेंडेड लिस्ट, इस सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, नो, सस्पेंडेड लिस्ट में 2 प्रोसेस है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये ऑपरेशन आपका चलेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट एंड वेकअप। क्या करना है, उस सस्पेंडेड लिस्ट से एक प्रोसेस को लेना है, उसको जगाना है, वेकअप करना है और कहां डाल देना है, रेडी क्यू में। तो यहाँ पर रेडी क्यू हम बनाते हैं, रेडी क्यू यहाँ पर हम लिखते हैं, और अब कौन सा प्रोसेस पहले उठाएगा, वो फीफो, जैसे मैंने काउंटिंग सीमाफोर में बताया था, वैसे ही बाइनरी सीमाफोर में भी जो पहले प्रोसेस आया है सस्पेंडेड लिस्ट में, उस प्रोसेस को पहले हम वेकअप करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसको वेकअप कर दिया, प्रोसेस P2 को, राइट, प्रोसेस P2 को वेकअप कर दिया। लेकिन अभी भी यदि P2 अब जाना चाहे, P2 अभी यदि आप अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तब भी वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो, सॉरी, जो सीमाफोर की वैल्यू है 0 है, तो यहाँ पर 0 उसको फॉल्स मिलेगी, तो वापस ब्लॉक में चला जाएगा। तो अभी वो ट्राई नहीं करेगा, ट्राई करने के कब करेगा वो, जब वो आप देखेगा सीमाफोर की वैल्यू यदि 1 होती है तो वो ट्राई करेगा, या कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ट्राई करेगा, तो वो तब वो सस्पेंडेड लिस्ट में नहीं जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो आपका P1 है, ठीक है, P1 क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में है, वो वापस से कोशिश करेगा बाहर आने के लिए, और बाहर आएगा और देखेगा कि यहाँ पर सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी नहीं है, अभी भी आपके सस्पेंडेड लिस्ट में एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, ये एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, तो इस प्रोसेस को क्या करेगा, इस प्रोसेस को ये देखिए एल्स में चला जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप। अभी क्या करेगा, वेकअप करके इस प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल देगा, और यहाँ से ये प्रोसेस खाली हो गया, वहां से सस्पेंडेड लिस्ट अब क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, राइट। नाउ अगेन एक्चुअली this process repeats execution if there are some resources, some process in the suspended list, and there are resources which is able to give some certain process. हमारे पास प्रोसेस है बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम यदि अलोकेट कर सकते हैं तो हमको इस सिग्नल और वेट ऑपरेशन को रिकर्सिवली हम यूज कर सकते हैं। तो रिकर्सिवली यूज करने के लिए हम इसको यदि रिकर्सिवली यूज करते हैं तो ये जो प्रोसेस है आपका सस्पेंडेड लिस्ट से, ये आपके रेडी क्यू में आ जाएगा। ये इसलिए भी आएगा क्योंकि वी हैव रिसोर्सेज टू गिव द रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस। तो हम इसको हम रिकर्सिवली कर सकते हैं। वी कैन स्लाइटली मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेट एंड सिग्नल, और उसमें हम बेसिक ऑपरेशन में नहीं करेंगे, हम उसको रिकर्सिवली इस तरीके से यूज करेंगे सो दैट द प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट कैन बी गो इनटू द रेडी लिस्ट, राइट, और रेडी क्यू। नाउ P1 एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ सिग्नल, ये सिग्नल को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, यस सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। अब ये एक कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो गया, एस की वैल्यू 1 हो गई। अब ये जो आपकी एस की वैल्यू है वो क्या हो गई, 1, राइट।
नाउ इट इज 1। अब ये जो आपका P1 है प्रोसेस वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया, एग्जीक्यूट हो गया, अपना रिमाइंडर सेक्शन वो सब करके वो बाहर आ गया, नहीं भी आया क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया पर रिमाइंडर सेक्शन में सपोज, पर अभी तो वो P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है, राइट। क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी है। नाउ प्रोसेस P2, दिस प्रोसेस P2 वांट्स टू एग्जीक्यूट इट्स वेट ऑपरेशन टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पर उसने P2 को ने किसको चलाया, वेट को चलाया। नाउ वी कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ 1 इज द वैल्यू ऑफ सीमाफोर इज 1। तो दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट इज सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो वो क्या होगा, ये जो आपका प्रोसेस P2 है क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और यहाँ पर जो आपके S की वैल्यू है वो 0 हो गई, यहाँ पर S की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। अब P3 आपका बचा हुआ है, P3 अगेन ट्राई टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जीक्यूट वेट ऑपरेशन। तो वेट ऑपरेशन में इसको फिर से 0 मिलेगा, तो ये P3 क्या हो गया, P3 आपका सस्पेंड लिस्ट में चला गया, राइट। तो इस तरीके से अगेन ये जो आपका P2 है, जब ये P2 इससे बाहर आएगा तो ये इस ऑपरेशन को चलाएगा, यहाँ पर एम्प्टी नहीं है तो P3 को वेकअप कर देगा, वेकअप करने के बाद यहाँ आ जाएगा और फिर से वो चलाएगा आपके इसको सिग्नल ऑपरेशन को। अब वो एम्प्टी हो जाएगा, तो ये एम्प्टी होने के बाद जब ये इस के अंदर जाएगा तो वैल्यू को 1 कर देगा। 1 करने के बाद ये आपका जो P3 है ये इस वेट ऑपरेशन को चला के और इस 1 के साथ वो सक्सेसफुल ऑपरेशन करके वो अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा। इस तरीके से ये आपका बाइनरी सीमाफोर काम करता है। अब इस बाइनरी सीमाफोर को हम यूज कहाँ करते हैं, कुछ एक्चुअल जो इसके या जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइक डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है, इनको हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनरी सीमाफोर। विल सी इन नेक्स्ट वीडियो हाउ टू सॉल्व द producer, consumer or dining philosopher problem by the use of binary semaphore. Thank you.